Assalamu alaikum. I'm Asiya Khavar. I welcome you all on this Skillshare forum of TutorBeesNet. So today's session is in continuity of the previous session, and format of this session is divided into two parts. One part I will invite Ms. Aisha Chaudhary, and other part will be conducted by me. So for starting the session, I would like to invite Aisha. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. So basically, thank you, Ji. So basically, the thought was behind this session to discuss values that are very important for teachers, and we understand that teachers out there can have a whole broad spectrum of values in their lives. And for us, it was important to also understand what are the values that are really, really important for the TutorBees platform. It's a subset of the overall, and I think in today's session, we're going to have a great discussion with all the experienced teachers that we have on the platform, with Asia's teaching experience and our observations coming from the platform. So starting off with an understanding of what values are, I've basically referred to two sources of information. The reference links are here, and we can just share the presentation also with everyone else. Values are your fundamental beliefs, and based on these beliefs, people like us, they're taking decisions day in and day out. Decisions about what is right, what is not right. Decisions about our attitude, our behavior. How are we going to act in a certain situation? Where are we going to spend our time? What are our priorities in life? So all of these things, they are basically coming down, and really our values are driving these decisions. To explain this a little bit more, I've taken some examples. So there are some intrinsic values that we see around us. It's about love, freedom, being truthful, friendship. So, all human beings, generally speaking, they understand these values. So friendship is a value that you'll see across the globe, irrespective of different religions that we see, right? So the bonds and the connections that people form with other human beings, they offer emotional support, right? They offer companionship. It's a different type of relationship that you have with your family. So talking about family members, you see the love and connection that you associate with your family members is a little bit different. Some people kind of drive it with their religious value also, and so friendship and family, they're slightly different. Similarly, there are sacred values that some of us have. They could be related to, for example, our association with our national flag. It could be associated with justice. What is justice for me may be different from what is justice, for someone living in some other country, in some other culture, right? So our views about gender equality, for example. So some of these values, they really boil down to our sacred beliefs, our religious beliefs. So once we are clear about values and the way they impact us as a person, we can really focus our session today on the values that are important for great teachers. Here I think I'm going to invite other input from Asiya as well. So knowledge for us at the first level is a great value, because you see, if someone values the knowledge, the subject matter expertise that they have, it shows their commitment to improving that knowledge. Hard work agar hai, to it's also a core value in a teacher. Hours and hours are spent by teachers doing work related to their students. It could be checking homework, it could be writing assignments, it could be planning lessons, it could be conducting classes, or it could also just be thinking about their students. What can I do for them, right? So
एक कोर स्किल नॉलेज और दूसरी कोर स्किल हमारे लिए जो वैल्यू है दैट्स हार्ड वर्क. कमिंग डाउन टू द थर्ड वन, perseverance. Perseverance is really important when you think about hope. Yani, if a teacher is actually not giving up even when the situation is tough, they have a don't quit attitude, they keep trying, and they maintain that hope for their student. So ye perseverance where this really impacts the student also. You see, it motivates a student to adopt a similar attitude, to adopt a similar behavior. So perseverance is one value जो कि हम platform पे बहुत ज़्यादा इसको value करते हैं. We really like this because this means that those students who have come to the platform for help, if they are able to connect with a teacher who will not give up on them, who will continue to do hard work and make sure that they are able to upskill, they are able to learn. So that's a value which is really important for us. Coming down to the fourth point, being compassionate, right? So compassion is about being kind, being helpful, developing that level of understanding that a person requires if they're facing a difficulty. And fundamentally, we're a platform that offers academic help. We're a platform that offers professional help. So अगर कोई हेल्प लेने आ रहा है, अगर कोई one-on-one connect कर रहा है, so we need to actually demonstrate this compassionate attitude. We have to understand what they're saying, we have to be kind, we have to continue to work hard and gradually transfer the knowledge that we have to the learner. And last but not least is integrity. I think that's really, really important, that the behavior of a teacher that should demonstrate this value. So I think I've really kind of explained के platform के लिहाज से why have we picked these 5 values as the core values that we would like to have in the teachers who are teaching on the platform. So speaking about practical experience, Asiya, would you like to add something के classroom environment के अंदर which is outside of the TutorBees platform, आप इन 5 values को कैसे देखती हैं? जी आयशा, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि ये जो वैल्यूज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, जैसे नॉलेज, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, कंपैशन, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, courage, these are words, good words, important words, but they are nothing more than words unless we actually live by them. So जैसा कि आपने बताया, हमारा अपना जो ग्रेटेस्ट एज ए ह्यूमन चैलेंज है ना, कि हम जो हमारे बिलीव्स हैं हम उनके अकॉर्डिंगली बिहेव करें, जिसको हम कहते हैं ये सेट ऑफ रूल्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे होना चाहिए. लेकिन अगर वो होना चाहिए तो वो सबसे पहले हमें खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए. सो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ. नॉलेज आपके पास होगी तो आप नॉलेज इम्पार्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं. हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हार्ड वर्क नहीं है तो आप कोई प्रॉपर पाथ से लेके जा ही नहीं सकते. परसिवियरेंस अभी आपने एक्सप्लेन किया. जी आयशा. And I think the teachers who demonstrate these values, they stand out from the rest of the crowd because students जो हैं वो भी उनको फिर appreciate करते हैं. Students उनसे inspire होते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर connect कर पाते हैं ना. Actually ये values जो अगर आप अपनी ज़ात का हिस्सा बना रहे होते हैं तो आपका एक पोटेंशियल एनर्जी आपकी बनती है, आपका एक इम्पैक्ट बनता है. आप जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं तो आप अर्न करते हैं रिलायबिलिटी, क्योंकि ये फील करने वाली चीज है, देखने वाली चीज है. वैल्यू जो है उसको कहने से कोई भी नहीं सीख सकता अनटिल अनलेस के वैल्यू प्रैक्टिस हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल मैं समझती हूँ कि रिस्पेक्ट भी वैल्यू के अंदर एक पार्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. हमारी स्लाइड में आप रिस्पेक्ट बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं मगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे. आप बहुत अच्छे टीचर हैं लेकिन साथ वाले अच्छे टीचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. आप कह रहे हैं बस मैं ही अच्छा टीचर हूं.
तो अगर आप ये दिखा रहे हैं, अगर आप ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो सोच लें और जान लें कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट अगर आप चाहते हैं तो वो फिर आपको इम्पार्ट करनी है. आपको सबसे पहले एक दूसरे के साथ वो प्रैक्टिस करनी होती है. एक ये बात है. और परसेवेरेंस में मुझे एक बात याद आती है कि परसेवेरेंस एक ऐसी चीज है, लाइक ये साइंटिस्ट, हम साइंस पढ़ाते हैं तो मैंने देखा साइंटिस्ट के लिए भी एक रूल है. आप कोई एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, आपने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपने देखी अपनी 5 सेंसेस के साथ, और वो बिल्कुल सामने आपको नजर आ रही. पर कोई पढ़ाते हुए उस ऑब्जर्वेशन को पढ़ाते हुए, एक बात करते हुए उसको डिनाई कर रहा है, और आप उसको बार बार बता रहे हो कि ये सही बात है. फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने शायद, ये बच्चों की एक स्टोरी है, मेपिम्बाज इफेक्ट, आइसक्रीम इफेक्ट है. फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उनको पता होगा. मेपिम्बा जो था वो एक 8th क्लास का स्टूडेंट था, और आइसक्रीम बनाते हुए फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल था, उसमें उसने एक चीज फिनोमेना ऑब्जर्व किया, और उसने अपने टीचर से कहा, तो टीचर ने कहा कि यानी वो नॉर्मल से हटके बात थी, तो टीचर ने भी उसका मजाक उड़ाया और वो बात खत्म हो गई. तो वो बात ऐसे चलते 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 उसके दिमाग में थी, मगर उसके साथ वो हर जगह उसको वेरीफाई करता आया कि ये ऑब्जर्वेशन थी, और हर बंदा उसको नहीं मान रहा था. और फाइनली वो उसकी वेरीफाई हुई, तो पता चला कि वो ऑब्जर्वेशन सही थी, और वो अब अप्लाई होती है आइसक्रीम मेकिंग के अंदर. सो आप देखें कि जो सच है, अगर उसके ऊपर हम रहते हैं और उसके लिए कोई भी उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में उसको एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि वो सच किसी को समझ में नहीं है या उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, उस पर खड़े रहना जो है ना, उसको परसेवेरेंस बोलते हैं. और साइंस में ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, और ये जो है ये सबसे डिफिकल्ट वैल्यू है टू प्रैक्टिस, क्योंकि आप बाज दफा सच के साथ अकेले होते हैं जी. और वो बात है कि गिव अप अगर आपने कर दिया तो दैट डजंट रियली हेल्प. I mean, and there are challenges जिसमें you don't want to give up. So speaking about respect, I think that's one point that I would like to clarify. The way our platform works is कि because हम one-on-one connect कर रहे होते हैं learner को और tutor को, तो respect is something जो कि words से, phrases से, the way teachers conduct their behavior online, वो मैसेजेस कैसे कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज और क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वो अगर उन्होंने डेमो के लिए टाइम दिया है, आर दे शोइंग अप ऑन टाइम, डिड दे प्रिपेयर फॉर द डेमो, उससे रिस्पेक्ट एक ऑब्वियस हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली, रिस्पेक्टिंग योर टाइम, रिस्पेक्टिंग अदर्स टाइम. एग्जैक्टली. फिर इसी तरह जिस वक्त वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के साथ ड्यूरिंग द डेमो सेशन, तो वहां पे वो किस तरह से करके अपना लेके चल रहे हैं सेशन. What we have observed on the platform is that many people do not connect with those tutors जहाँ पे learner को वो respect feel नहीं हो रही थी. So वो automatically kind of drop off हो जाते हैं लोग. They end up not getting paid tuitions. ये आपका पॉइंट है, मैं आपका पॉइंट रोक के इस बात को रीइंफोर्स करना चाहती हूँ. प्लीज, यहाँ पे सब लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बार बार ग्रुप में ये मैसेज करते हैं कि हमें ट्यूशन चाहिए, और हमें ट्यूशन, हमने प्लेटफॉर्म पे इस तरह भेजा है, हमें ट्यूशन क्यों नहीं मिल रही. तो मैं बार बार ये बात यहाँ पे बताने लगी. ये जो टिप इन्होंने बताया, आपका अगर एक डेमोन्स्ट्रेशन आप देते हैं, डेमो देते हैं, और आप उसमें देने के बाद वो आप कहते हैं कि हमने अर्न नहीं किया, हमें दूसरे बंदे ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारा इतना टाइम चला गया, तो प्लीज इस बात पे गौर करें कि आप उसकी बात को सुन रहे थे या समझ रहे थे, या समझने में आप में कितना पेशेंस है. सो रिस्पेक्ट एक मेन एलिमेंट है. दूसरे की बात को आप कितना सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, ये मेन चीज है, जो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट. आपको जरा अपने आप को इसके अंदर प्रैक्टिस करके लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने तो है नहीं. सो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिस्पेक्ट का. जी आयशा. And the point is that, you know, people pick up on this, they understand this, भले verbalize करें या ना करें. So this reflects from all that we are doing, even if it's a digital world, उसके अंदर भी our values, they reflect from our actions, right? So I think this kind of explains कि ये 5 चीजें हमारे लिए क्यों important हैं.
आगे 2 चीजें हमारी और हैं, उसके बाद वी विल जस्ट ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. जस्ट बी पेशेंट, 2-4 मिनट हमें दे दीजिए प्लीज. सो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जो हमने अपनी बात समझाने के लिए यहाँ पे रखी, दैट वाज के फॉर एग्जांपल इफ यू आर टीचिंग अ सब्जेक्ट, तो आप अपने बिहेवियर से, आप अपने एक्शन से हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दैट वैल्यू ऑफ नॉलेज. सो माय क्वेश्चन टू ट्यूटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने अपना नॉलेज ब्रश अप किया था. सो अगर आप इसकी एग्जांपल पूछते हैं तो डिड यू सर्च फॉर एनी न्यू रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट दैट कैन हेल्प यू फास्ट ट्रैक योर टीचिंग प्रोसेस. ठीक है, या आपने रिसर्च किया कि अच्छा, एज अ टीचर, एज समवन हु इज ड्राइविंग दिस प्रोसेस, मैं कौन से सवाल पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ थ्रू विच आई कैन असेस कि मेरे स्टूडेंट की लर्निंग कैसी जा रही है. यानी एक डायमेंशन है आपका सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा डायमेंशन है हाउ वेल आर यू एबल टू कम्युनिकेट, हाउ वेल आर यू एबल टू असेस. तो ये तीनों डायमेंशंस के अंदर आपने अपने आप को कब अपस्किल किया था, राइट. एंड समटाइम्स देयर आर सब्जेक्ट लेवल सर्टिफिकेशंस आल्सो जो आप कर सकते हैं. सो वी आर नॉट डिमांडिंग दैट यू गो अहेड एंड प्रूव कि आपने ये किया है, बट वी आर सजेस्टिंग, वी आर टेलिंग यू, वी आर शेयरिंग आवर ऑब्जर्वेशंस that those people who will act on this value of knowledge, वो अपने आप को बेहतर करते जाएंगे. They will continue to be more and more successful on the platform. ठीक है, तो अगर आपका बिलीव है कि नॉलेज जो है it is actually a value for you, आपको इसके लिए टाइम डेडिकेट करना चाहिए, आपको इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए. एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ आयशा. जी जरूर. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि नॉलेज का वैल्यू जो है, आप उसको अपग्रेड करें, आप स्किल करें, आप उसको बहुत अच्छा करें, मगर उस नॉलेज को आप जब इम्पार्ट करने जा रहे होते हैं, आप अपने स्टूडेंट को डिलीवर करने लगे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने बैग में से क्या चीज है जो रिक्वायर्ड है वो अपने स्टूडेंट को देनी है. सो नॉलेज का होना इज वन थिंग, ये भी एक बात है कि आपके पास ये स्किल होना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इज एन अदर एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बाज दफा बहुत सारे नॉलेज के साथ हम उस एक बच्चे का डिमांड जो कि हमारे पास हमसे रिक्वायर्ड होता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, और हम कहते हैं हम तो काबिल हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता है, हम बहुत अपग्रेडेड नॉलेज के साथ खड़े, लेकिन हम वहाँ वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कर पाते. बिल्कुल सही बात है. या सो दैट्स डेफिनेटली वन वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, आप लर्नर की सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं. अच्छा, देन देयर इज वन अदर एग्जांपल दैट वी थॉट ऑफ, एंड दैट्स टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी. यानी अगर आप इंटेग्रिटी को समझते हैं, आई एम श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड कि इंटेग्रिटी मीन्स doing the right thing even if someone is not looking, right. और मैं भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि it's right thing बिल्कुल ठीक है, doing the right thing, किसी चीज को ईज और कन्वीनियंस के ऊपर, सही चीज को अपनी ईज और कन्वीनियंस के ऊपर प्रेफर करना. ईज और कन्वीनियंस को छोड़ के सही चीज है वो जितनी भी डिफिकल्ट है आप उसको अडॉप्ट करें. जी, and that includes like keeping your commitments. Yes, and to just put this in perspective, yani we have seen ke students or teachers jo hain, they interact in the demo session, they commit with each other ke acha, let's start classes for a month. And lot of those times teachers are in a better position to understand ke agar ek student ka level hai and they want to go up to let's say some other level, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा टीचर को बेहतर अंदाजा होता है. सो अगर वो सारा एफर्ट हुआ है कि टीचर स्टूडेंट कनेक्शन भी हुआ, आपने टाइम लगाया, आपने क्लासेस स्टार्ट की, एंड देन फॉर यू सी अदर अपॉर्चुनिटीज एज ट्यूटर्स, यू पिक अप मोर वर्कलोड एंड यू एंड अप इन अ सिचुएशन कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट वी विल नॉट वैल्यू बिकॉज it goes against personal integrity के मेरी commitment है एक student के साथ that yes I'll work with you and I'll make sure that your exam preparation is complete, for example, right.
तो यू शुड स्टे ऑन विद दैट स्टूडेंट, यू शुड मेक श्योर कि आप इस कमिटमेंट को फुलफिल करें, और अगर वो करने के लिए आपको कोई और एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है तो आप वो करें। The flip side to this is, if you are in a situation जहाँ पे आपको लगता है अच्छा you're not ready to make a long term commitment because जाहिर है प्लेटफॉर्म है और we do not know about availability of each and every tutor, right? So अगर किसी के पर्सनल प्लान्स हैं वेकेशन पे जाने के, या there is something else happening in their life and they know कि अच्छा I'll be able to teach for 4 to 6 months, then I have to travel or I'll be busy elsewhere. So then don't make commitments that you cannot fulfill. It's not worth it. 1 month की tuition fee is not worth it. You breaking your commitment, right? हाँ, और इससे इंसान जो है अपना पीस और प्राइड दोनों को लूज करता है, और अगर इंटेग्रिटी हो तो ये बनते ही हैं पीस एंड प्राइड. And I think teachers are role models. वो अपने लिए भी they can have a higher self esteem अगर वो बेहतर values practice कर रहे हैं अपने daily life के अंदर. They will think good about themselves, they'll feel good, and that automatically translates into very positive energy. So with this, let's open up the floor for questions, comments. If someone wants to say something, and we want to understand from other teachers, parents are also teachers, कि जी आपकी personal values क्या हैं? We've noted down some of them here. Most welcome to share your comments and share your thoughts. मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं. मुनीज़ा है यहाँ पर, मेरा ख्याल है उनको भी इनवाइट करते हैं. इमरान साहब हैं यहाँ पर. मुनीज़ा Places, बेटा. Any लिख रहे comments from the हैं. audience? मुनीज़ा लिख रही हैं. हाँ जी. Okay. Yes, you can find students from other countries also. Yeah, definitely find. Shazia, do you have a comment? I think she raised her hand earlier. Yes, अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली बेसिकली मैं उस वक्त जो रिस्पेक्ट की बात हो रही थी वो वही पॉइंट मैं भी रेज करना चाह रही थी कि इट्स नॉट ओनली रिस्पेक्ट बिटवीन द ट्यूटर्स, या मीनिंग इन द स्कूल हम बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देखते हैं, जो द रिस्पेक्ट द टीचर गिव्स टू द स्टूडेंट, दैट रियली मैटर्स अ लॉट. अगर आप इन रिटर्न अगर आप चाहते हैं, या फिर आपके जो स्टूडेंट्स अमंग देमसेल्फ जो उनका बिहेवियर है बच्चों का, उसके दरमियान में जो उनका आपस में रिस्पेक्ट जो है वो टीचर को डेफिनेटली नोट डाउन करके रखना चाहिए कि वो ज़रूर हो. क्योंकि अगर बल्कि ये आप क्लास से शुरू करेंगे, या वही बात होती है पहले तो घर ही से स्टार्ट होता है एंड देन इन द क्लास ऑब्वियसली, सो ये तभी आगे जाकर इन द एंड आप द ट्यूटर कैन एक्सपेक्ट के उनको भी रिस्पेक्ट मिलेगी. सो हमेशा फर्स्ट स्टेप ट्यूटर ने या टीचर ही ने लेना होता है, एंड देन उसके एंड में आप फिर कोई भी जो चाहे आपका लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, जो भी आप करते हो वो उसी वक्त ही आएगा जब आप पहले खुद वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट भी करोगे और फिर इनकलकेट करोगे स्टूडेंट्स में, और इन रिटर्न देन यू विल फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिलता है. थैंक यू. Talat, you want to say something? Please go ahead. You can turn on your mic and say. अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये ऐड करना था कि जैसे अभी ये सारी बात हुई है तो लर्निंग के हवाले से, तो ये मतलब कि क्लासरूम इन्वायरमेंट में तो नहीं कि 1 to 1 जो लर्न आप कर रहे होते, तो मुझे इसमें एक लगता है एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो भी आपका स्टूडेंट है उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो टीचर थोड़ा सा अगर उससे पहले डेमो ले या जो भी दे उससे पहले कि उससे एक मीटिंग कर ली जाए, जैसे कि उसको एनालाइज किया जाए कि इस बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप अपने जो लेक्चर्स हैं उनको प्लान आउट करें कि भाई ये बच्चे का लर्निंग स्टाइल है, इससे इजीली ये इसको लर्न कर सकता है और इसको हेल्प देगा. तो मेरे ख्याल से वो भी एक इसमें ऐड होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है. ये आयशा आप पहले इस पे बात कर लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी. I see. So essentially जी, I think मेरा comment will be based on the observations that we have. So we have seen teachers जो कि adapt करते हैं डेमो के अंदर कि स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंस वगैरह क्या है. And we have also seen that there are some tutors who will actually through message exchanges ask the student कि अच्छा you know is there a specific topic that they want to cover in the demo. तो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक कि उनको कितना विजुअल दिखाना है, कितना वर्बली एक्सप्लेन करना है, वो अपनी चॉइस वैसे कर रहे होते हैं. सो आयशा उस्मान, प्लीज गो अहेड. यू वांट टू से समथिंग? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी.
जी अच्छा, एज अ टीचर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, और बहुत दफ़ा क्योंकि डेफिनेटली हम लोग पर्सनल लाइफ में अपने इश्यूज़ को भी हैंडल कर रहे होते हैं, और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम वी शुड स्टे प्रोफेशनल ऑल द टाइम, ठीक है। हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्टूडेंट्स की भी, पेरेंट्स की भी। डेफिनेटली एज अ टीचर बड़ी सारी हमारे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मुझे ये फील होता है कि एक ऐसी पर्सनल वैल्यू है जो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, वो है पेशेंस। क्योंकि we are dealing with a class of children having different abilities, तो उनको हैंडल करना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस से करना पड़ता है। स्पेशली अगर हम देखें तो जूनियर लेवल पे भी इनफैक्ट, और इनफैक्ट ये तो मेरा ख्याल है हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से पेशेंस से उनको जी डाइवर्स जो आपका स्टूडेंट बॉडी होती है उसको आप किस तरीके से हैंडल करें। तो ये भी है जिसको हमें ऐड करना चाहिए। जी, we completely agree. This is very valid. We completely agree. Teachers have to be patient. जी आसिया? हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पेशेंस की जो बात इन्होंने की, वो पेशेंस जो है टीचर के लिए तो है, इंसानों के लिए भी पेशेंस इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं समझती हूँ कि जिसके पास पेशेंस है वो दुनिया का पावरफुल पर्सन है, मोस्ट पावरफुल पर्सन। लेकिन पेशेंस यहाँ पर सिस्टम में मैं ये समझती हूँ कि टीचर्स इतना काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आयशा ने कहा, तो उनके अपने बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो जो लोग उनको टीचर्स के साथ डील कर रहे होते हैं ना, मेरा ख्याल है उनके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए फॉर कंसिडरिंग द वेल बीइंग ऑफ अ टीचर, के अगर ये काम कर रहा है और इससे आज इतना नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा स्पेस दिया जाए। सो पेशेंस के साथ, पेशेंस जो है ये दोनों एंड्स पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर भी और टीचर की साइड पर भी। टीचर रिक्वायर पेशेंस, मतलब उसका ख्याल रखने के लिए भी चाहिए। और ये वो पार्ट है जो कि मेरा ख्याल है कि टोटली इग्नोर्ड है स्कूल्स के अंदर, और इस पे बहुत सारे काम की अभी जरूरत है। आप अगर देखें तो टीचर जो है एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग जो उसके सराउंडिंग में हो रही है। और अच्छा तो उसने 24 आवर्स रहना ही है, क्योंकि वो टीचर जो है उसने चूज किया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि टीचर्स के लिए भी जरूरी है, जो उनको डील कर रहे हैं लोग, कि वो टीचर्स के लिए एक कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन बनाएं। तो एप्रिसिएशन भी एक वैल्यू होनी चाहिए, encouragement. Yes, and that's something that we practically practice at the platforms. Appreciative certificates are given out to teachers. जी फैजान, आप बड़ी देर से आपने हैंड रेज किया है, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, तो मैम मेरी एक जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो एक ऐसे है कि मतलब स्टूडेंट्स जैसे कुछ होते हैं, हर किसी का अपना अलग स्टाइल है स्टूडेंट्स का पढ़ने का। कुछ होते हैं मतलब समझदार होते हैं, मतलब थोड़े टाइम में चीज समझ जाते हैं। कुछ होते हैं मतलब ज्यादा पढ़ के लिख के तो उनको मतलब ऐसी चीज समझ आती है। तो मतलब कुछ टीचर्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ये चीज है, उनको इंकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब खुद ही टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेनी चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए। एम्पावरमेंट मतलब होनी चाहिए, एम्पावर करनी चाहिए हमें स्टूडेंट्स को। तो मतलब कुछ टीचर्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो नहीं पढ़ पा रहे होते या मतलब टाइम ज्यादा लगा रहे होते हैं बनिस्बत दूसरे जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनके। तो मतलब एक कह सकते हैं एहसास कमतरी भी मतलब उनमें पैदा होने लग जाती है, जो मतलब काफी उनको पीछे ले जाती है और भी। तो एक एम्पावरमेंट वैल्यू। आप मुझे ये बताएं कि ज्यादा आपको कितने परसेंटेज टीचर्स का ऐसा मिला है जो डिस्करेज करते हैं या डिग्रेड करते हैं? मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरे खुद 2 टीचर्स, एक मेरे उर्दू वाले थे, क्योंकि मेरी यहाँ पाकिस्तान में मैं ज्यादा नहीं रहा, सऊदीया रहा हूँ, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे मतलब टाइम लगता था इसको उर्दू को समझने के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। तो फिर वो मतलब काफी डिग्रेड करते थे, मतलब बार बार ऐसे कि हाँ तू थोड़ा टाइम तुम बाहर लगा के आए हो तो तुम्हें मतलब अपने मुल्क का नहीं पता, तुम्हें ऐसे नहीं पता। तो मतलब मैंने 14-15 साल लगाए बाहर सऊदीया में। तो मतलब उसमें कहते थे कितना टाइम लगा दिया अपने आप उसको, कस्टम्स को, वैल्यूज को भूल गए, ये भूल गए। तो मतलब इस तरह एक ये थे जी, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है कि
काफी ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को डिग्रेड करते हैं, और मतलब वो काफी मतलब बच्चों को आगे तक इफेक्ट, काफी एंड तक इफेक्ट करता है, मतलब काफी जगहों पे करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है काफी हद तक, वो बोल नहीं पाते, वो बोलने लगते हैं तो उनको वही टीचर्स याद आ जाते हैं कि ये जैसे वो डिग्रेड। ठीक है फैजान, ठीक है फैजान, ये पॉइंट आपका आ गया, और मैं इस पे ये जवाब देना चाहती हूँ कि टीचर्स का अगर हमारे जितनी भी स्कूल्स हैं उसमें अगर अप्रिसिएशन का कल्चर बन जाए तो टीचर ये डिग्रेड करने वाला जो है ना इसमें से निकल जाए एलिमेंट। सो ये बहुत है, और आप इस पे बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाइड। मेरा ख्याल है कि 2 लोगों ने हैंड रेज किया है, इमरान साहब, मेरे ख्याल उनको बुला लें, और इसके अलावा भी हैं। प्लीज गो अहेड इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी मैम। अच्छा मैम, इसमें ऐड करना चाह रहा था कि अभी बात हो रही थी बच्चों की कैपेसिटी के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर। डेफिनेटली हर ह्यूमन बीइंग जो है वो यूनिक है, ये हमें समझना चाहिए। देखिए, और अभी हम सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगी, इंडिविजुअल्स की डिफरेंट होंगी, सोसाइटी की अलहदा होंगी, कल्चरल अलहदा होंगी, रिलीजियस अलहदा होंगी। सो ये बेसिकली फाउंडेशन है। सो हमें सबसे पहले देखना ये है कि क्या हमने कोई ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि जिसके ऊपर हम ये वैल्यूज की एक फाउंडेशन बना के एक पूरी बिल्डिंग बना सके, जिसके अंदर हमारे ट्यूटर्स परफॉर्म कर सके। क्या हमने उनको, वो मेंटली इतने वेल बीइंग हैं कि वो कोई इनिशिएटिव ले सके, क्या वो इतने एम्पावर हैं स्कूल्स के अंदर। अभी तक मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मेरे एक्सपीरियंस में आया कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो स्टूडेंट्स को वो कोई इवन ये भी नहीं कह सकते कि आप अपना डेस्क एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके ले जाए, क्योंकि इतनी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि कुछ फिजिकल अब्यूज हुए थे पास्ट के अंदर, के ऊपर गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सो बाहर हम जब देखते हैं सिस्टम देखते हैं तो किस तरह से वो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, जिसके अंदर ट्यूटर का और स्टूडेंट का एक रिलेशन बन जाता है, जहां पे वो देख लेता है कि किस बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके, और वो कहाँ पे एक्सेल कर सकता है, उसको किस चीज की जरूरत है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें डिफरेंट पोटेंसीज की मेडिसिन देते हैं, तो इसीलिए वो देख लेता है कि किसको क्या चीज कम देनी है, किसको ज्यादा देनी है, किसी को थोड़ा सा डांटना है, किसी को बहुत ज्यादा प्यार से लेके चलना है, किसके साथ कोई फिजिकल ऐसी स्पेशल बच्चे हैं, कोई मेंटली ऐसी उसके अंदर थोड़ी सी चीज है, और या कुछ उसके में कोई ऐसी जिसकी वजह से वो ये बिहेव कर रहा है। क्योंकि हर एक चीज होती है कि उसकी बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीज होती है, या वो हाइपर हो जाता है, वो या झगड़ने लगता है, या ध्यान नहीं दे पाता, तो ये भी उसकी चीजें हैं। सो क्या हमें ये सबसे पहले नहीं देखना चाहिए कि क्या हमने वो सारी चीजें एक ट्यूटर को दी हैं, और क्या ये भी है कि जो ट्यूटर ट्यूशंस पढ़ा रहा है या स्कूल में जॉब कर रहा है या कर रही है, क्या वो टीचर ही बनना चाह रही थी या उसके पास चॉइस कोई नहीं थी और उसने कर लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजन में भी यही हुआ है कि जो हम इतना पीछे चले गए कि वो लोग जो कि गाँव देहात में या बहुत सारे जो रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज हैं, उसमें कुछ भी नहीं कर पाते थे, उनको मदरसे के हवाले कर दिया हमने। अच्छा, सो इमरान साहब, आई थिंक कि हम इसको थोड़ा सा डिस्कशन को नैरो करते हैं, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स विद स्कूल एनवायरनमेंट एंड certainly we are not in a position to address those. Yes, we can create awareness at our level, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकली आई फील वेरी स्ट्रांगली कि हम प्लेटफॉर्म के लेवल पे कर सकते हैं और कर रहे हैं, हम एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली अप्रोच को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। थैंक यू फॉर ग्रेट ऑडियंस। यानी आज हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस टुडे इज टीचर्स, राइट? एंड आई एम श्योर कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने रिस्पॉन्सेज में लिखा है वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर होंगे, तो दैट इज हाउ वी कैन चेंज दैट कल्चर। तो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी कोशिश यही है कि हम एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करें। हम वी आर अप्रिशिएटिव ऑफ दोज जो इनकी वैल्यूज जो हैं वो उनके बिहेवियर से बहुत ऑब्वियस होती हैं। दे प्रैक्टिस पेशेंस एंड रिस्पेक्ट एंड ऑल द अदर वैल्यूज दैट आई मेंशन्ड। ये आयशा, ये मैसेजेस भी हैं, काइंडली आप इनको भी जरा देख लें। नजर आ रहे हैं आपको मैसेजेस?
जी अच्छा मैं देखती हूँ। टीचर्स के, आई हाँ थिंक जी। सबसे पहले तो इनका था मोहम्मद मुनकशिफ साहब का। हाँ जी, हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम जी, एंड थैंक यू वेरी मच। यस, कुछ प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अपना नॉलेज जो है वो अपग्रेड करना ही होता है। सो वो या डेफिनेटली। एंड देन देयर इज अ कमेंट बाय आसिम जावेद, इट्स अ ट्रायंगल बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें हर किसी का पर्सपेक्टिव आई एम श्योर बिल्कुल डिफरेंट होगा, हम शायद जनरलाइज ना कर पाएं, लेकिन यस, अगर ये ट्रायंगल में जनरली चीज़ें पॉजिटिव हैं तो आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक भी नोड इसकी नेगेटिव है और अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ को एडहेयर नहीं कर रही है, भले वो टीचर हो या पेरेंट हो, तो आई थिंक स्टूडेंट काफ़ी सफ़र करेगा। I think we need to add session for parents as well. That's a very useful advice, Asim साहब. This is something जो कि बहुत I feel कि change हो गई है parenting. Again, this is a digression from our topic. I'll just say one sentence कि ये बदल गई है because of the media exposure. So yeah, इसको यहीं पे रखते हैं. We will do the next session on values for parents. Fatma Khalid, you want to say something? Please go ahead. Yeah, Assalamualaikum. Yeah, my question was that, like, I'm a fresh graduate, but students don't take young teachers very seriously, and even the senior colleagues, they also look down at you sometimes, like इन्हें क्या पता होगा, ये तो अभी आए हैं. So I think experience time के साथ ही बनता है. You have to start somewhere, but that's kind of humiliating sometimes. मेरा ख्याल है यहाँ रिस्पेक्ट वाला वैल्यू आ जाता है ना आयशा. ये फातिमा जो बात कर रही है कि रिस्पेक्ट तो बोथ साइड्स, फ्रॉम यंग टीचर एंड फ्रॉम सीनियर टीचर. जी, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और यानी एनालाइज करूं और सोचूं तो कुछ यंग लोग भी अपनी जगह बड़ी जल्दी बनाते हैं. तो अगर आई थिंक इफ एनीवन इज इन अ सिचुएशन जहां पे दे आर रिलेटिवली लेसर, दे हैव लेसर एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू अदर पीपल, तो अगर वो अपने नॉलेज पे, अपनी कोर स्किल पे फोकस करें ना ज़्यादा, तो आई थिंक कि वो जर्नी थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. कि वो वैसे ये भी बात है, नॉलेज और कोर स्किल पर फोकस करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ जो फातिमा का पॉइंट था, मेरा ख्याल है कि एक एक्सेप्टेंस चाहिए होती है. अगर कोई यंग बच्चा है और वो काम कर रहा है, यंग ट्यूटर, यंग टीचर है, तो उसको थोड़ी सी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है. और वो अगर कोई सीनियर टीचर देता है तो ये वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप है. और जहाँ कहीं भी होता है वहां पे मतलब वो जगह वर्क करती है. But I will sum it up, Asya, by saying that, you know, that's beyond our circle of influence. मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकूंगी कि आप मुझे रिस्पेक्टफुली मेरे से बात करें. However, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ by changing my skill level. नहीं, लेकिन आप देखें, रिस्पेक्ट जो है वो ये नहीं होती कि हम किसी को मजबूर करें तो रिस्पेक्ट मिलती है. रिस्पेक्ट ऐसे है कि आप अपने सीनियर की जगह को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप उससे जैसे बात करें, जो आप उसको दे रहे हैं, आप फिर उससे रिसीव भी करते हैं. फिर मुख्तलिफ देखिए, अगर आप 40 मिनट आपका सीनियर स्पेंड करता है, उससे ज्यादा आवर स्पेंड कर रहे हैं, और आप 20 मिनट में आप समझते हैं कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिखाया, तो ये आपका रिस्पेक्ट ना देना है. सो ये ऐसे है कि जो चीज आप कर रहे होते हैं वो एको करती है, वो जाती है बगैर गए. सो जो आप बात कर रही हैं, मैं वही बात कर रही हूँ. You are saying working on core skills. तो ठीक है, उन्हें करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो then you know we have to decide कि हमने क्या करना है. नासिर खान साहब, you have raised hands. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, मैं एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि भी बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स के बारे में कि जो हैं कुछ टीचर्स जो हैं उनको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं या उनको बताते हैं कि जी वो उनको तो ये तो सीख ही नहीं सकते या इनको आता ही नहीं है. ये बात हो रही थी, एक नौजवान बात कर रहे थे. तो मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि जो टीचर है वो एक फिजिशियन की तरह होता है. तो मैं भी अक्सर मेरे जो कोलीग्स रहे हैं और अक्सर ये बात करते थे कि यार ये कमज़ोर है या इसको आता नहीं है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास एक मरीज ही आता है. अगर वो पहले ही नॉलेजेबल होता वो बच्चा, या वो पहले ही इतना ही डेवलप होता, तो हमारी क्या जरूरत है? टीचर की जरूरत है. हाँ जी, टीचर्स की
ये है कि टीचर हैज टू बी डायग्नोस्टिक, कि उसको डायग्नोसिस करनी है उस बच्चे के को पूरी तरह से उसको देख के कि उसकी वीक एरियाज कौन से हैं। और दूसरी बात वो पहली बात इससे पहले हो चुकी है, वो ये थी कि हमें जो है वो बच्चे को देखना है कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। हमारा टीचिंग स्टाइल तो है हमारे पास, वो भी हम अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसको कस्टमाइज करेंगे उसके लर्निंग स्टाइल के ऊपर, कि वो कैसा सीखना चाहता है, क्या कि वो जो है वो लिस्निंग पे ज्यादा वो करता है, वो राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहता है, वो किस तरह से सीखना चाहता है। तो हमें भी अपने आप को, अपने लेसन को उसी तरह से कस्टमाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी ये है कि नंबर 1 तो आपने परसिवेरेंस की बात की है, तो हमें परसिवेरेंस इसलिए भी जरूरी है कि हम जब तक अच्छे लिसनर नहीं होंगे तो रिस्पेक्ट हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें ये वो बात भी आ जाती है कि वो जैसे वो कहते हैं कि नया टीचर जो है उसकी क्या, नया टीचर तो पहले दिन ही अपनी रिस्पेक्ट अदा कर सकता है अगर वो उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह सुने और उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो जो चाहता है, वो उसकी जरूरत को पूरी कर दे, तो रिस्पेक्ट तो डेवलप हो जाता है। और उस वक्त से वो एक फाउंडेशन होती है जो यू ले फॉर योर रिस्पेक्ट। तो ये वो चीजें हैं चंद। हाँ जी, तो ये जो बात आपने की है इसमें मैं ये यहाँ पे वो पॉइंट मिल गया, फातिमा का एक्सप्लेनेशन का सवाल का पॉइंट मिला मुझे, कि जो बात आप कह रहे हैं नया टीचर तो आते ही अपनी रिस्पेक्ट ले सकता है, एक्चुअली बाय लिसनिंग, बाय नॉट डिमांडिंग रिस्पेक्ट। फर्स्ट डे पर आप आके एक्सपेक्टेशन रिस्पेक्ट की रख रहे हो, तो ये नहीं आपको करना, आपको पहले सुनना है ना, तभी आपको समझ आएगी, फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर आपको वापस कुछ आना शुरू होगा। जी बिल्कुल। We have a comment from Talat also, Talat Yasmin. Please go ahead. जी, मैं कहना चाहती थी, रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, लर्निंग ऑल द टाइम्स, ये जॉन हॉल्ट की है, ये राइटर है इसकी ना। तो उसमें भी जैसे अभी पीछे उन्होंने बात की, उन्होंने भी ये कहा था उसमें कि सबसे पहले टीचर को जो है वो स्टूडेंट के साथ एक अपना रिलेशन बिल्ड करना चाहिए ना। वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन टर्म ऑफ बच्चे के लिए भी और खुद सेल्फ टीचर के लिए भी, कि वो उसको बहुत इजीली वे में उसको टीच कर सकता है, बजाय इसके कि वो बहुत मतलब कि प्रेशराइज हो इस चीज़ में। तो इजीली मतलब ये मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे इससे लगा कि नहीं, ये ऐसा है, इसको हमें करना चाहिए। That's a great recommendation, तलत। आप ये जो रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, और अभी जो नासिर साहब ने बात की डायग्नोस्टिक और लर्निंग स्टाइल के ऊपर, ये जो 3 बातें हुई ना, इन 3 बातों को वो टीचर अप्लाई कर सकता है जो पैशनेट हो, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना, जो बड़े वेल डिफाइंड सिस्टम है, हम उनको बात नहीं करें, हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें, लेकिन इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि जिसको टाइम दिया जाता है और स्पेस दिया जाता है ना टीचर को, वो ये चीजें अप्लाई कर सकता है, और अदरवाइज वो सिंगल आउट भी हो जाता है ऐसा टीचर, क्योंकि वो एड्रेस कर रहा होता है उन वीक स्टूडेंट की प्रॉब्लम जिनको रेस्ट ऑफ द टीचर्स ने छोड़ दिया होता है। व्हाई? बिकॉज आपका सिस्टम नहीं डिमांड कर रहा होता ना, सिस्टम कह रहा होता है छोड़ दे इनको, क्योंकि ये तो चल नहीं सकते, इन पे तो बहुत टाइम लगेगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो जो एक ही तरह से पढ़ रहे हैं हम उन बच्चों को काम कराते हैं। तो ये प्रॉब्लम टीचर का कम है, अगर आपके सिस्टम में ऊपर एड्रेस हो जाए तो आपका स्कूल अच्छा हो सकता है, वैल्यू बेस्ड। So we have 3 more people जिन्होंने हैंड रेज किया था, एक आसिम थे, एक तलहा थे, and now there is इमरान। So इसी सीक्वेंस में अगर आप काइंडली अपने कमेंट्स, if you want to say something, आसिम, तलहा and then इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने बस वो उसी के ऊपर ही कमेंट करना था, वो मैंने लिख दिया वहाँ पे कि यंग टीचर्स के लिए जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, इनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा जाता है, कि आप व्हेन यू फर्स्ट इन योर क्लास दैट हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो अगर आप फर्स्ट डे में ही अपना इंप्रेशन अच्छा बना लेते हैं तो आई थिंक फिर आप रेस्ट ऑफ द टाइम, मतलब सम टाइम ऐसा भी है कि आप जो सीनियर टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा जो है वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बट द थिंग इज दैट हाउ यू बिल्ड अ रिलेशन विद योर स्टूडेंट। एंड सेकंड थिंग, मैंने थोड़ा ऊपर कमेंट किया था कि टीचर, इट्स अ ट्रायंगल ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मैं प्राइवेट स्कूल सिस्टम में हूँ, आई एम फ्रॉम बीकन हाउस। सो व्हाट आई एक्सपीरियंस इज दैट कि यहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी जो हैं वो आई थिंक सिस्टम ने उनको इतनी लिबर्टी दे दी है, या पेरेंट ने खुद जो है वो सारा कुछ टीचर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। सिस्टम ने लिबर्टी दे दी जी, टीचर ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का। अगर फर्ज करें कि
बच्चा कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है तो पेरेंट जो है वो पहले टीचर से आगे बात नहीं करेगा। उन्होंने अपने बच्चों को ही इतना पैम्पर कर दिया है कि बच्चों में वो जो एक टीचर की रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट था वो उनमें वैसे ही जो है वो टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है। जो आने वाली जनरेशन है उसमें तो मैं व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट कि वो पहले वालों से ज्यादा कम होता जा रहा है। ये कागजों पे रह गई है, ये बोर्ड्स पे रह गई है, नोटिस बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से हम सजाते हैं इनको, फिर ये वहां पे रह जाती है, बच्चों में नहीं जाती। बिल्कुल। So that goes out to the next workshop. हमने parenting वाली थोड़ी सी बात की। So Talha, do you have a comment? मेरा ख्याल है आयशा हम रिव्यू के लिए बुला लें बिलाल को पहले, फिर जब तक तलहा भी आ जाएंगे। Sure. ठीक है, बिलाल आ जाए। Thank you so much, ma'am. Before giving demonstration, ma'am Aisha, you have started a poll. If you submit it, then I can take the presentation. Okay. Just give me 1 second. Otherwise, it will disappear. Okay. So I've published it basically. That's our audience. Yeah. Very nice. Okay, ma'am. So I'm going to share my screen. I'm going to demonstrate how to give review to this session. So please, after this session, do not forget to give a review. So I'm going to share my screen now. Miss Asia, is my screen visible? हाँ जी. Okay, yes. So this is, thank you ma'am. So this is tutor's account. So, and to give a review, you will need to switch to student account. So this is the button to switch to student. But if you're using mobile, then on top left, there is a menu button. You will click on it and you will find in the list, this button, switch to student. So I'm going to switch my profile to student profile now. Okay, it has been changed to student profile. Now on my dashboard, I will scroll down a little, and under my tuitions on top you can see Miss Asia Khawar's today's session, and this is the yellow button to leave a review. So do not forget to give a review after this session. Thank you so much. And in the end, I'm going to share our social media handles on public chat. Please save them and please follow us there for updates, and especially YouTube channel, and of course Facebook and Instagram as well. So thank you so much, ma'am. And for all the queries, you can just email us at admin@tutorbees.net and we will be glad to assist you there. Thank you. Thank you, Bilal. Thank you very much. So I think we just have like 5 or 6 minutes before we end the session. कोई पार्टिंग कमेंट्स किसी के रह गए हो, प्लीज गो अहेड। मुझे एक बात पूछनी जी इमरान सर, और फिर उसके बाद नासिर खान साहब, आप इसी सीक्वेंस में गो अहेड। जी मैम, जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि जो मैंने पहले भी रेज किया था कि जो हमारा कन्वेंशनल टीचिंग स्टाइल या सिस्टम है वो हमें ये अलाउ नहीं करता कि क्लासरूम्स में या कहीं पे जो रिलेशनशिप, जो मैंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया था, जब तक कि वो एक रिलेशन टीचर अपने स्टूडेंट के साथ डेवलप नहीं करेगा तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। और 1-on-1 लर्निंग में हमने ये देखा है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी हुई है और हमने एनालिसिस भी किए हैं कि वो जो अभी एक न्यू ग्रेजुएट थी, उन्होंने फरमाया कि नए टीचर रिस्पेक्ट कैसे ले सकते हैं या वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये तो आया है कि जब उन्होंने 1-on-1 में आके एक रिलेशन डेवलप किया है तो दे आर गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने उनको अप्रिशिएट भी बहुत किया है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि रिलेशनशिप जब वो अपना डेवलप कर लेते हैं तो इसमें नए ट्यूटर भी बहुत कामयाब हो सकते हैं और मैंने उनको बहुत फ्लरिश करते हुए भी देखा है। तो बेसिक पॉइंट यही है जो मैंने पहले भी रेज किया था कि वो जब एक बच्चे को उसका यूनिक पॉइंट्स को डिफाइन कर लेते हैं और उसको उसके साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं तो वो इसमें बहुत कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी नासिर खान साहब एंड देन आयशा उस्मान। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी अपॉलॉजीज आप कबूल करें, बेसिकली ये तो है तो कोर वैल्यूज के ऊपर, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इसके यूजेज की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने वैसे ज्वाइन किया है इसको, तो इसमें मैं जो डेमो लेसन दे रहा था तो मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स, मैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कुछ थी वीडियो क्लिप्स थी, तो उनको शेयर करना मुझे नहीं समझ आई। मैंने ट्राई किया, मैंने एक्चुअली एक पीपीटी बनाई थी, उसके अंदर ही वो क्लिप्स मैंने लगा दिए थे, लेकिन जब मैंने वो पीपीटी इसके ऊपर लोड किया है इसके व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो
वो प्ले नहीं कर रही थी। तो क्या कोई तरीकाकार है कि इसके ऊपर हम वीडियो जो क्लिप्स हैं उसको भी अपलोड कर सकें इधर दिखाने के लिए? अच्छा, we'll ask our support team to address that question. वो शायद अभी डेमो करना पॉसिबल नहीं हो नासिर साहब, so we should do it after the session. You can expect a response. Okay, thank you. जी, मुनीजा and Aisha Usman, you want to say something? जी, अच्छा, ये इमरान साहब अभी जो बात कर रहे थे, मैं सिर्फ उस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप बनाने के लिए, स्पेशली अगर आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट करे, तो इसमें मेरा ख्याल है पेरेंट्स का तो बहुत पार्ट है, क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के सामने टीचर्स की बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सामने बच्चों को बिठा के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एज ए पेरेंट भी, एज ए टीचर भी, कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे बच्चों को साथ लेके आया जाता है और फिर टीचर की इंसल्ट की जाती है। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है फॉर दिस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो ये इस पे तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेक रखना चाहिए, जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ा रहे हैं। और डेफिनेटली एज ए पेरेंट कभी भी अगर आपके टीचर जो आपको आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको उनमें कोई भी इशू नजर आ रहा है, तो आप इस तरीके से बच्चों के सामने कभी भी डिस्कशन ना करें जिससे टीचर की वैल्यू जो है वो कम। जी बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री. And I think Faik has a question that there are people who want to learn all the subjects. So essentially Faik, this is again something जो कि probably हमारी admin team address कर सकती है. There are teachers who do it, वो एक schedule बनाते हैं और उसके मुताबिक, यानी Monday को क्या cover होगा, Tuesday को क्या cover होगा, and so on and so forth. हर जगह this is not possible, but for smaller classes sometimes this is doable. जी इमरान साहब, लास्ट 1 minute for you and then we will end the session. मैं आयशा उस्मान ने जो बात की है मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ. और तो मैंने पहले बात की थी वैल्यूज की और एथिक्स की, वो यही है कि जब तक पेरेंट्स घर पे, और डेफिनेटली वो ट्यूटर उनका बच्चा रेज कर रहा है, उनको ये पता होना चाहिए, और बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट हम करेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी करेंगे. मैम से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. चलिए, thank you very much everyone for your participation today. So I think with this I'll just end the session. Any parting words from Asya? Thank you very much. इस सेशन से बहुत बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली, और ये 5 कोर वैल्यूज जो हैं हर टीचर में होनी चाहिए. और प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म की वैल्यू मुझे लगता है ये भी है हमारे, कि जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. टू अर्न अ स्टूडेंट, अगर आप कोई स्टूडेंट अर्न करना चाहते हो तो आपको काम करना है रिस्पेक्ट के साथ, और उसके साथ फिर आप यू विल मेक रिलेशनशिप और यू अर्न स्टूडेंट. जी चलिए, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.